Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ Basic to Advanced. And today in day 9 of this playlist, we are going to see what are functions in C++, what is call by value and call by reference in C++, and then we will see some example programs. So from today or from previous lectures, this series is going to its important phase. Okay, so if you haven't checked this playlist, just go to our channel, that is Newton School Code Kitchen, and you can check this playlist of C++. Okay, fine. So before heading towards our next video, this video, let's see what Newton School is. Newton School is basically a e-learning platform which provide you courses and train you for as a full stack developer. Okay, so इसमें almost 300 companies के साथ tie up है. ThoughtWorks, Unacademy, Dream11, Deloitte, Misho. Okay, so first they train you for around 6 months as a full stack developer by teaching you different programming languages and data structures and then development, and then get you placed in any of these companies of minimum at least 5 lakh CTC. Okay, so which is also good. Only thing you need to do is come to their website and check this pay after placement program. Okay, just apply now for free, and under their pay after placement program also they do not pay you even a single penny until you get placed in one of these companies. Okay, so it is also good. And these days they have also launched a new initiative known as Launchpad. So इसके अंदर में क्या है, they are providing you free courses for different programming languages and data structures and everything. Only thing you need to do is just go and sign up or log in for free and start learning. Okay, so just come to their website and explore as much as you can and get the most out of it. So let's head towards our today's topic. Okay, so today we are going to see what are functions in C++. Okay, so हम अभी तक पूरा प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे थे और हमने एक ही फंक्शन देखा था जो कि था मेन फंक्शन. ओके, सो मेन फंक्शन तो हमें पता है क्या होता है ना. फाइन, नाउ वी नीड टू चेक व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो पहले तो एक तो हमारा मेन फंक्शन होता है जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि वही मेन फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है एट द एंड. फाइन, देन कुछ अदर फंक्शंस होते हैं जो हम मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये होते क्या है, सिंपली एक पीस ऑफ कोड. ठीक है, जिसको तुमने डिक्लेयर कर दिया है और उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी है. इसको तुमने कहीं पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी तुमने डिफाइन कर दी है. और उस पीस ऑफ कोड को कभी भी तुम्हें वो पीस ऑफ कोड एक्सिक्यूट करना है, सो यू कैन कॉल दिस फंक्शन बाय इट्स नेम. सपोज इसका नाम कुछ है सम. ठीक है, अब तुम्हें अपने मेन फंक्शन के अंदर कभी भी किसी दो नंबर का सम करना है तो यू कैन ओनली कॉल दिस सम एंड उस सम फंक्शन को बता सकते हो कि मुझे इन दो नंबर्स का सम करना है, and it will return in the sense it will give you sum of these two numbers. Okay, so why we use functions? Suppose हमारे पास कई सारी वैल्यूज हैं, लाइक पेयर्स में गिवन है. ठीक है, 1 6 2 3 4 5 8 10 11 थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हैं. ठीक है, और तुम्हें कहा गया है इन सबका सम प्रिंट करो. ठीक है, तो इधर यू विल राइट 1000 टाइम्स 1 plus 6, then 3 plus 4, then 5 plus 8, 1000 टाइम्स तुम ये लिखो. इधर व्हाट यू कैन डू इज तुम एक फंक्शन डिफाइन कर दो सम, जिसको बता दो कि मैं इसके अंदर इसको दो वैल्यूज दूंगा. ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करो सम नाम से और उसको बता दो अपने प्रोग्राम में कि मैं इसको दो वैल्यूज दूंगा और इसको रिटर्न क्या करना है, मुझे उन दोनों नंबर्स का सम. ओके, और हर बार जब तुम में किसी नंबर का सम करना है तो तुम सिंपली क्या कर दो, सम ऑफ 1 6, सम ऑफ 3 4, सम ऑफ 5 8, इसी तरह 1000 वैल्यूज में लिख दो. अब यहाँ पे तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये तो a प्लस बी भी लिखना उतना ही है
और सम ऑफ 3 4 लिखना भी उतनी ही चीज है, ठीक है। बट सपोज बहुत ज्यादा कोड है, पहले तुम्हें सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर एडिशन करना है, तो हर बार 4 लाइन ऑफ कोड लिखने से 1000 टाइम्स इट इज बेटर कि तुम 1000 लाइन्स लिख दो, है ना, जिसमें हर लाइन के लिए 4 लाइन ऑफ कोड ये फंक्शन एक्सिक्यूट कर देगा खुद ब खुद, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज फंक्शंस। अब एक प्रॉपर सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फंक्शन की, ओके। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो मैंने बता दिया कि एक पीस ऑफ कोड है, जब भी हम उसे अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे वो रन हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ डिक्लेरेशन, फंक्शन में तुम्हारे क्या क्या होता है, ठीक है। मान लो तुम्हें किसी कोड में अपने प्रोग्राम में फंक्शन यूज करना है, तो क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा कि तुम फंक्शन ये यूज कर रहे हो। वो कैसे होगा, डिक्लेरेशन में सिंटेक्स क्या होता है मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक रिटर्न टाइप इन द सेंस डेटा टाइप, कि तुम उस फंक्शन से क्या रिटर्न करोगे, कैसी वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू, जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स तुम्हारा है और a प्लस बी तुम सम करोगे, ठीक है, तो उससे आंसर जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। सो सबसे पहले एक रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। रिटर्न टाइप विल बी ऑब्वियसली सम डेटा टाइप लाइक इंट और स्ट्रिंग, एनीथिंग, एनी डेटा टाइप, ठीक है। फिर फंक्शन का नेम जो कि है सम हमारा यहाँ पे, ठीक है, और सम में इसका क्या था, इंट, रिटर्न टाइप इंट सम, अंदर उसके सम वैल्यूज, यू कैन से कि जो तुम उस फंक्शन को देने वाले हो, जिसके ऊपर वो फंक्शन ऑपरेट करके तुम्हें आंसर देगा, तो अंदर कुछ उसके वैल्यूज, तो वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, और वैल्यू n, अप टू वैल्यू n तुम कितनी भी वैल्यूज दे सकते हो, फाइन। ये हो गया डिक्लेरेशन। अब तुम्हें इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, तो सिंपली क्या करोगे तुम, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इंट सम, सेम सिंटेक्स है, ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, यहां तक। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी तुम्हें कोड लिखना है, ठीक है, यहाँ पे अपना कोड जो भी तुम्हें एक्सिक्यूट करना है। अब ये हो गया तुम्हारा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, जहां पे भी तुम्हें मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जहां पे भी तुम्हें फंक्शन कॉल करना है, उसका सिंटेक्स सिंपल होता है, फंक्शन का नाम लिखो और उसके अंदर जो भी तुम्हें वैल्यू देनी है वो लिख दो, a और b, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीजें फंक्शन में होती हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज तुम्हारा मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तुम्हारा ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है, ये पूरा, और तुमने मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली अगर मेन फंक्शन में तुम कोई फंक्शन सम कॉल कर रहे हो, तो वो फंक्शन तुम्हारा ऊपर डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ओके। क्योंकि C++ में क्या होता है, C++ में तुम्हारा कोड ऊपर से नीचे की तरफ एक्सिक्यूट होता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, और तुमने सम यहाँ पे यूज किया है, बट तुमने सम जो है डिक्लेयर किया है नीचे कहीं पे, ठीक है, तो इट विल ऑब्वियसली गिव एन एरर, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि सम है कहाँ और डिक्लेयर कहाँ है, ऊपर तो कहीं डिक्लेयर है नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें सबसे पहले अपना फंक्शन डिक्लेयर करना है कोड पे ऊपर साइड, ठीक है, फिर उसके नीचे जब भी तुम फंक्शन कॉल करना चाहते हो करो, ठीक है, जब भी तुम्हें अपना फंक्शन सम कॉल करना है, फाइन। अब तुम्हें डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों, या फिर तुम एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, या फिर तुम एक साथ भी लिख सकते हो, और या फिर अलग अलग कर लो कि तुमने डिक्लेयर ऊपर कर दिया है, तुमने एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, अब तुम उसको डेफिनेशन कहीं भी दो, मेन फंक्शन के बाद में दो या फिर अंदर कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो कई टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनलाइन फंक्शन होते हैं और ये एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं, वो हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम अभी खाली एक्सटर्नल फंक्शंस देख रहे हैं, सिंपल फंक्शंस जो हम मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन कर देते हैं, और सिंटेक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फंक्शन हमें पता चल गया क्या होते हैं। नाउ फंक्शन हमने देख लिया कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन का नेम देना है। अब फंक्शन में हम देख रहे थे कि हम कुछ वैल्यू पास कर रहे थे,
वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, और वैल्यू n अप टू n। अब ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर तुम कुछ वैल्यू दे रहे हो तो उस फंक्शन को भी पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी वैल्यू है किस टाइप की। लाइक तुम कोई एरे दे रहे हो या फिर इंटीजर दे रहे हो या स्ट्रिंग दे रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऐसे पास नहीं होगी, ठीक है। इनको हम बोलते क्या है, पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन में ये जो वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये जो देते हो तुम, ये होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये फंक्शन की डेफिनेशन है int sum। अब पहली वैल्यू तुम्हारी इंटीजर है मान लो, तो तुम सिंपली क्या लिखोगे, int नंबर 1, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड सेकेंड वैल्यू, उसका भी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है मान लो, और नेम क्या है उसका, तुम्हारे पैरामीटर का नेम क्या है, नंबर 1 और नंबर 2, ये हो गए तुम्हारे पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे अब तुम अपनी डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है ना। ये तो हो गए पैरामीटर। अब तुम्हारे एक आर्गुमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे सम को, ठीक है, तो तुम अंदर क्या दोगे, कुछ वैल्यूज दोगे तुम्हारे प्रोग्राम की। मान लो कोई दो नंबर्स को तुम्हें सम करना है एक्स और वाई, तो ये दोनों हो गए तुम्हारे आर्गुमेंट्स, ठीक है। और ये नंबर 1 और हो गए नंबर 2 पैरामीटर, ठीक है, फाइन। अब डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, सपोज तुम किसी फंक्शन में सम तुमने बनाया और तुमने किसी वैल्यू को, मान लो num1 को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कि तुम कभी भी मेन फंक्शन के अंदर अगर सम फंक्शन कॉल कर रहे हो और तुमने कोई वैल्यू x बस दी है, बट तुम चाहते हो कि y की वैल्यू जो डिफॉल्ट है वही रहे, ठीक है। तो तुमने y में कोई वैल्यू दी ही नहीं है और y की डिफॉल्ट वैल्यू बाई डिफॉल्ट तुम 0 चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हो, num2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन दे दो। अब जब भी तुम अपने फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, और कॉल के टाइम पे तुम एक वैल्यू तो दोगे, बट दूसरी वैल्यू तुम क्या चाहते हो, डिफॉल्ट रहे। तो बाय डिफॉल्ट जब तुम्हारा फंक्शन अपनी डेफिनेशन लेगा तो उसमें नंबर 2 को 0 ले लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर भी हो गए और आर्ग्यूमेंट्स भी पता चल गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पता चल गया। अब बस एक हमें देखना है रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, हम कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स पढ़े थे, तो डेटा टाइप्स के टाइम पे हमें पता चला था कि एक तो होता है हमारा वॉइड, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो मैंने वहां पे बोला था कि हम वॉइड डेटा टाइप यूज नहीं करते कभी डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, लेकिन हम इनको फंक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस में कैसे, सपोज तुम कोई फंक्शन लिख रहे हो और तुम्हें उससे एक स्पेसिफिक टास्क बस करवाना है, लेकिन उस फंक्शन से कोई वैल्यू नहीं चाहिए। सपोज तुम्हें एक फंक्शन लिखना है प्रिंट करने के लिए हितेश त्रिपाठी, ठीक है। तो अब तुम्हें कोई फंक्शन से वैल्यू तो चाहिए नहीं, क्योंकि इंटीजर जैसे कोई, बस तुम्हें एक चीज प्रिंट करनी है ना, तो तुम उस टाइम पे वॉइड डेटा टाइप यूज करते हो, ठीक है। वॉइड मींस नो रिटर्न टाइप, ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तुम सिंपली क्या लिखोगे, प्रिंट फंक्शन लिख दो, पैरामीटर की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें खाली प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे लिख दो सी आउट, ठीक है, और हितेश त्रिपाठी या फिर जो भी तुम्हें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो वॉइड टाइप मतलब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, हम खाली इससे पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब जो बाकी दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक तुमने एक इंट टाइप का फंक्शन बनाया फन, ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें मल्टीप्लाई करवाना है दो वैल्यूज का, x और y का, ठीक है। यहाँ पे इंट x और इंट y आएगा। डेफिनेशन में तुम गए, तुमने एक वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू x क्रॉस y किया। अब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो तो तुम्हें इससे कोई बाकी जितने भी डेटा टाइप होते हैं उन सबको रिटर्न टाइप चाहिए होता है, ठीक है। उसके बिना ये एरर देगा। वॉइड में अगर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो नो एरर आएगी, अगर बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड यू हैव टू रिटर्न समथिंग, रिटर्न z। अब क्या होगा, तुम कहीं पे भी फन कॉल करोगे, ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल लेते हो a इज इक्वल टू फन,
तो a में तुम्हारा क्या आएगा, x मल्टीप्लाई y, ठीक है, ऐसे। तो रिटर्न टाइप का मतलब कि ये तुम्हें एक वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वॉइड के अलावा जितने भी डेटा टाइप है उन सब में एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाने तो यू कैन सिंपली रिटर्न 0, ठीक है, और एनी गार्बेज वैल्यू कोई भी, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो उसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा दो, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया रिटर्न टाइप भी क्या होता है, फाइन। अब सेकेंड थिंग देखते हैं और लास्ट थिंग देखते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग क्या है, टॉपिक कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू तो हम अभी तक कर रहे थे, ठीक है। फंक्शन कॉल बाय वैल्यू अगर नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा है या कॉल बाय रेफरेंस, तो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई फंक्शन है और हम फंक्शन कॉल मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, तो हम कॉल कर रहे हैं कोई फंक्शन को बाय वैल्यू ऑफ सम पैरामीटर, ठीक है। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय रेफरेंस होता है कि वी आर कॉलिंग सम फंक्शन बाय रेफरेंसिंग द पैरामीटर, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में, अब सपोज तुम्हारे पास कोई नंबर है इंट a और b, ठीक है, और तुमने ये फंक्शन कॉल किया a और b, ठीक। अब तुम चाहते हो कि a की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 1 थी, और b की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 2 थी, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि ये फंक्शन मैं कॉल करूं और a की वैल्यू क्या हो जाए, a इज इक्वल टू 3 हो जाए और b इज इक्वल टू 4 हो जाए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सिंपली फंक्शन के अंदर a b लिखोगे और यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन करोगे वॉइड, क्योंकि तुम्हें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, और यहाँ पे तुम दो वैल्यूज दोगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, दोनों इंटीजर टाइप की होंगी, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या कर दोगे कि वैल्यू 1 को तो तुमने क्या किया, 3 बना दिया, a को 3 बनाना था तो वैल्यू 2 को तुमने क्या बना दिया, 4 बना दिया। तो ये फंक्शन कॉल करने के बाद क्या तुम्हारे a और b 3 और 4 बन जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो, ये जो फंक्शन है इसमें कॉल बाय वैल्यू परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कॉल बाय, जो हम सिंपल फंक्शंस लिखते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे ओरिजिनल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ये जो ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ये तुम्हारे जो तुम्हारे आर्गुमेंट है a और b, ठीक है, जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है, ये तुम्हारे जो ओरिजिनल आर्गुमेंट्स हैं a और b, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तुम्हारे इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम्हें एक स्पेसिफिक टास्क इन वैल्यूज का यूज करके दे देंगे और कोई वैल्यू दूसरी कैलकुलेट करके तुम्हें रिटर्न कर देंगे, बट इनकी स्पेसिफिक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में ये होता है। सो इसी की वजह से हमने क्या किया, हमने एक दूसरी चीज निकाली, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। जो हमने अभी एक टास्क डिफाइन किया था कि ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है उसके लिए, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस हमारा उस केस में यूज आता है जब हमें किसी फंक्शन को यूज करके हमें किसी आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज करनी होती है, उस केस में हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस का सिंटेक्स में क्या चेंज आता है, ठीक है। सिंपली हम जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लो ये फंक्शन है और हम जैसे दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंट a इंट b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप के जस्ट बाद एक एम्परसेंड, ये समझ में आ रहा होगा, ये होता है रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब इससे हमने क्या किया, हमने इससे अपने कंपाइलर को बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये कॉल बाय पैरामीटर जो है ये बाय रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। बाय रेफरेंस ले रहा है, इसका मतलब क्या कि अब ये तुम्हारे जो मेन आर्गुमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम इतना समझो, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और ये चीज कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है। और इसमें डाउट भी आएगा तुम लोग की, मतलब कॉल बाय वैल्यू कर दोगे और फिर एरर ढूंढते रह जाओगे कि ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई प्रेफर कि तुम हर बार ही अपने फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट जो है, पैरामीटर्स जो है वो कॉल बाय रेफरेंस ले लो, ठीक है। तो कभी तुम्हारा
एरर आएगा ही नहीं, ठीक है। फाइन, तो तुम्हें करना क्या होता है, सिंपली अपने डेटा टाइप के जस्ट बाद एक रेफरेंस ऑपरेटर लगा देना होता है, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि कॉल बाय रेफरेंस ले रहा है। अब एक तरीके से तुमने रेफरेंस बाय कॉल बाय रेफरेंस कर दिया, तो तुमने उस एड्रेस पे चेंज कर दिया। मान लो तुम्हें x की वैल्यू चेंज करनी थी, ठीक है, तो तुमने इंट एम्परसेंड x लिया, तो अब x के एड्रेस में वैल्यू चेंज हो गई सिंपली, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉल बाय रेफरेंस होता है। फाइन, अब कोड करते हैं हम, और कोड करने में हमें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहां तक हमने सब पढ़ लिया, अब कोडिंग देखते हैं। फाइन, अब हमें अपना कोड लिखना है यहाँ पे, और इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन लिखना है हमें, ठीक है। तो हम एक अच्छा सा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है। हम यहाँ पे तो इजी कोड्स लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको हमेशा ही इजी कोड्स लिखने हैं, ठीक है। तुम किसी भी चीज के लिए फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं आज, ठीक है, फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ एरे। अब हमने पहले भी एरेज भी पढ़ रखा है और फंक्शन भी पढ़ लिया, अब हम ये करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन अपना लिखा, ठीक है। एक एरे डिफाइन की हमने, एरे ऑफ साइज 10, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, साइज भी हम यूजर से लेते हैं, ठीक है, सीन साइज, ठीक। अब हमने उसी साइज की एक एरे डिफाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, इस एरे का इनपुट लेना है, तो i इज इक्वल टू 0 से i साइज तक चले, और सीन एरे ऑफ i कर दिया, है ना। अब हमारा क्या हुआ, हमने यूजर से साइज ले लिया, उतने साइज की एरे बना दी और उतना इनपुट ले लिया एरे का। अब हमें सिंपली क्या कॉल करना है, फंक्शन, ठीक है। तो इंट अगर हम सम ले लें, और सम इज इक्वल टू क्या करते हैं, फंक्शन, जिसमें हम क्या पास करेंगे, अपनी एरे, ठीक है। एक एरे पास कर दी और एक उसका साइज पास कर दिया, ये दोनों चीज की। तुम सिंपली, अगर तुम्हें पैरामीटर्स देखने या आर्गुमेंट्स देखने की तुम्हें अपने फंक्शन में कौन कौन से चाहिए, तो तुम सिंपली ये देखो कि फंक्शन में किस चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना। फंक्शन लिखने में तुम्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमें सम निकालना है पूरी एरे का। तो अब तुम अगर एक सूडो कोड लिखो कि हर एलिमेंट, तुम्हें एक हर एलिमेंट चाहिए होगा, है ना, तो उसके लिए तुम्हें अपनी एरे की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें कितने एलिमेंट्स चाहिए ये भी पता करना होगा, तो उसके लिए तुम्हें अपने साइज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इससे ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी, ये चीज सोच लो अभी, ठीक है। फाइन, अब हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल तो कर दिया, अब फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन पे हमें सम रिटर्न कराना है ना, तो हमने डेटा टाइप लिया इंटीजर। अब फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करने की बारी आई, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट हमने नीचे क्या कॉल के टाइम पे दिया, एरे। तो एरे को हम सिंपली क्या करेंगे, इंट एरे का नाम और उसका ब्रैकेट, जिससे पता चलेगा कि वो एक एरे है। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, साइज, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना डेफिनेशन। एक वेरिएबल लेते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, जिसमें हम अपना सम प्लस करेंगे, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। वाई 0 से इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाई, क्योंकि तुम अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो कंपाइलर क्या करता है, वो कोई भी गार्बेज वैल्यू रख लेता है अपने उस पे, ठीक है। तो अगर तुम, अभी मैं ये चीज दिखाता हूँ, ठीक है, कि इनिशियलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा। तुमने एक लूप लगाया i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज तक, i में प्लस प्लस किया, और सम में क्या किया, सम प्लस एरे ऑफ i, ठीक है। और रिटर्न क्या कर दोगे अब तुम, सिंपली सम। अब देखो, पहले इसको कॉल करके दिखाता हूँ, फिर इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं ये दिखाता हूँ। सपोज मैंने 5 साइज दिया अपनी एरे का, और फिर एलिमेंट्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब ये 1 to 5 नंबर्स का सम देगा आउटपुट में, ठीक है, ठीक है।
यहाँ सम में स्टोर तो हो गया आउटपुट, लेकिन अब सम प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक, अब रन करते हैं। 15 सम आ गया हमें। ठीक है, 1 to 5 नंबर का सम 15। So guys, this is it for this video. Subscribe this channel and like this video if you haven't done yet. Okay, and again go to Newton School website and check out their courses and Launchpad initiative also. Okay, fine, and check their pay after placement program also. Okay, and again check out this playlist if you haven't checked yet, and share it to your friends or siblings. Okay, thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section. Subscribe this channel and like this video.